Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is calculation of CGPA. The particular topic related to B.Ed semester 2, paper number 8, assessment for learning, and the unit number is 5. As you know that the importance of CGPA, especially for the academic achievement or the academic development. In this process, you have to know your performance in a CGPA pattern. जैसा कि आप सभी जानते हैं, CGPA का एक अपना महत्व है। शैक्षणिक उपलब्धि या शैक्षणिक महत्व के दृष्टिकोण से CGPA का एक अपना महत्व है। CGPA के माध्यम से छात्र अपनी जो उपलब्धि है उसकी गणना कर सकते हैं, जान सकते हैं, और एक ऐसा आधार जिसमें कि छात्र अपनी उपलब्धियों को एक सामान्य औसत के रूप में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कह सकते हैं कि CGPA दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन का एक ऐसा आधार जिसमें कि औसत रूप से यानी एवरेज रूप से आप अपने परफॉर्मेंस, अपने परसेंटेज को जान सकते हैं। बड़ा ही सरल और सहज तरीका है इसके कैलकुलेशन का। सेमेस्टर के अनुसार जैसे कि है कि स्ट्रेस को कम करके सेमेस्टर प्रणाली को लाया गया, उसी आधार पर CGPA पूरे सभी सेमेस्टर का आपके परफॉर्मेंस को गणना करने का एक आधार है। दैट मीन्स कैलकुलेशन का एक आधार है कि कैसे आप जो है वो उसे कैलकुलेट करें, समझें और जानें। तो मैं अब आपको CGPA और कैलकुलेशन ऑफ CGPA के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class B.Ed semester 2 paper number 8 assessment for learning. Now CGPA, cumulative grade point average, another prominent method of calculation of the marks we score in our colleges or schools is through CGPA. CGPA is the abbreviated form of cumulative grade point average. The total marks that we score in all the sessions of a college term or both half yearly examinations in school is taken together to calculate the CGPA scored in that academic term. The central difference between semester grade point average and cumulative grade point average is that we calculate CGPA at the end of the academic year with many SGPAs or different semesters or sessions. Conversion of SGPA to CGPA. According to the definitions, we have established of SGPA and CGPA. CGPA can be termed as the collective SGPAs calculated at the end of an academic year. In order to calculate CGPA, need to first find the average score of all subjects in each of the semester, that is SGPA. Then add all the SGPA of all the semesters and divide the total by the number of semesters or session to find your CGPA for the academic year. For CGPA is equal to, in bracket, SGPA of all semesters in an academic year divided by number of semesters. For example, if a student scored 8 and 7 SGPA in their 2 semesters, their CGPA would be CGPA of academic term is equal to SGPA of semester 1 plus SGPA of semester 2 divided by 2, means 8 plus 7 and divided by 2, that is 15 by 2, and the
CGPA is 7.5. Now, difference between SGPA, CGPA and GPA. Number 1, CGPA as the cumulative GPA is a result of the division the sum of all the SGPA in an academic year with the number of semesters. CGPA is calculated for the entire course, while GPA is per the semester, and SGPA is for a particular session, is it in a year or so on. Second point, many universities and colleges have different grade system, as some use GPA while others have CGPA as the major grading system to assess the scholastic abilities of a student. Number 3, while CGPA and GPA aims to highlight a student's academic performance over a stipulated time period, many institutions prefer GPA more than CGPA to give admissions to the students. Number 4, CGPA is reflective of your performance for an entire course, thus it can only be a higher one if you have a better GPA and SGPA. Another prominent difference is in CGPA and SGPA always differ from the scale. नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। CGPA यानी संचयी ग्रेड पॉइंट औसत, कॉलेजों यानी महाविद्यालयों या विद्यालयों में अंकों की गणना का एक और प्रमुख तरीका CGPA है। CGPA संचयी ग्रेड पॉइंट औसत का संक्षिप्त रूप है। कुल अंक जो सभी सत्रों या स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा में स्कोर करते हैं या अंक प्राप्त करते हैं, उस शैक्षणिक अवधि में किए गए स्कोर को या अंक को CGPA की गणना करने के लिए एक साथ लिया जाता है। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत के बीच का अंतर यह है कि हम शैक्षणिक वर्ष के अंत में CGPA की गणना विभिन्न सेमेस्टर या सत्र के कई SGPA के साथ करते हैं। SGPA से CGPA का रूपांतरण यानी कन्वर्ट कैसे करें? SGPA और CGPA की जो परिभाषाएं स्थापित की गई हैं, उसके अनुसार CGPA को एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में गणना किए गए SGPA की संज्ञा दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, CGPA की गणना करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सेमेस्टर में सभी विषयों का औसत स्कोर खोजने या प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, यानी जो मार्क्स आप प्राप्त किए हुए हैं। सेमेस्टर के सभी SGPA जोड़ें और शैक्षणिक वर्ष के लिए अपने CGPA को प्राप्त करने के लिए सेमेस्टर या सत्र की संख्या से कुल को, यानी जो टोटल अंक आया है, को विभाजित करें इस प्रकार से, जैसे कि इसके लिए फॉर्मूला है CGPA इक्वल टू एक शैक्षणिक वर्ष में सभी सेमेस्टर का SGPA डिवाइडेड बाई सेमेस्टर की संख्या। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र ने अपने 2 सेमेस्टर में 8 और 7 SGPA स्कोर किया है, यानी स्कोर प्राप्त किया है, तो उनका CGPA होगा शैक्षणिक का CGPA, यानी फॉर्मूला है शैक्षणिक का CGPA इक्वल टू सेमेस्टर 1 का SGPA प्लस सेमेस्टर 2 का SGPA और डिवाइडेड बाई 2, चूँकि 2 सेमेस्टर की बात है इसलिए 2। तो इसके उपरांत क्या हुआ, SGPA 1 और SGPA यानी फर्स्ट सेमेस्टर का SGPA और सेकेंड सेमेस्टर का SGPA, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि 8 और 7 उसने स्कोर किया था, मान लीजिए छात्र ने स्कोर किया तो वो टोटल हो गया 15, और उसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं, चूँकि 2 सेमेस्टर की बात है, तो जो ये छात्र है उसका CGPA 7.5 होगा। अब मैं SGPA, CGPA और GPA के बीच अंतर स्पष्ट करूँ। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, संचयी GPA के रूप में CGPA एक शैक्षणिक वर्ष में सभी SGPA के योग के साथ सेमेस्टर की संख्या के परिणाम स्वरूप विभाजन होता है। CGPA की गणना पूरे पाठ्यक्रम के लिए की जाती है, जबकि GPA सेमेस्टर के अनुसार
और SGPA एक विशेष सत्र के लिए होता है। कई विश्वविद्यालयों, सेकेंड पॉइंट, कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अलग अलग ग्रेड सिस्टम होते हैं, जबकि कुछ में GPA का उपयोग होता है, जबकि अन्य में CGPA के रूप में एक छात्र की शैक्षणिक क्षमताओं का आकलन करने के लिए प्रमुख ग्रेडिंग सिस्टम होता है। नंबर 3, CGPA और GPA का उद्देश्य छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन को निर्धारित समय अवधि में आकलन करना है। कई संस्थान छात्रों को प्रवेश देने के लिए CGPA से अधिक GPA पसंद करते हैं। नंबर 4, CGPA पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदर्शन का चिंतनशील है और इस प्रकार यह केवल एक उच्चतर हो सकता है यदि आपके पास बेहतर GPA और SGPA है तो। CGPA और SGPA का पैमाना हमेशा अलग एक और प्रमुख अंतर इंडिकेट करता है या एक और प्रमुख अंतर है। इस प्रकार से हमने कैलकुलेशन यानी CGPA की गणना के बारे में स्पष्ट किया, साथ ही साथ GPA, CGPA और SGPA में क्या अंतर है उसको भी हमने स्पष्ट किया। तो मिलते हैं अगले क्लास में आपसे फिर एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।